Good morning, children. Welcome back to our English class. How are you all? I hope you all are fine at your home. Okay, children, we were on topic pronouns and today we will do its last topic, that is indefinite pronoun. आज हम इसके last topic complete करेंगे, indefinite pronouns. And this will be next your topic will be notice. And from tomorrow onwards our revision will start. So children, जो new students है, those who haven't done previous work, from tomorrow we will do revision, तो वो continue अपना previous work they can do simultaneously. Okay children, now our last topic of pronouns is indefinite pronouns. Indefinite first we will know the meaning of indefinite. जिसका कोई indefinite means when we are not sure, या जिसका कुछ पूरा पक्का हमें नहीं होता है. Likewise we are not sure. Indefinite pronouns. Now indefinite pronouns, for example, अभी आपने जो pronouns किए थे वो आप एक particular के लिए यूज कर रहे थे. For example, for boy you are using he, for girl you are using she, and if children or more than one are there, then you are using they or we or are. For you yourself you are using I, me, myself and mine. Means these are definite pronouns. आपको पता है हमें boy के लिए he यूज करना है, girl के लिए she यूज करना है, like this. Now indefinite pronouns are when you don't know the person. उनके लिए आप जो words यूज करते हो. Now for example, somebody, nobody, anybody. Now these words are used when you are not sure for the particular people, for particular thing or for particular someone. मीन्स ये वो वर्ड्स हैं जो आप किसी ऐसे पर्सन के लिए, कुछ ऐसे लोगों के लिए यूज कर रहे हो जिनके बारे में आप श्योर नहीं हो. नाउ फॉर एग्जांपल, किसी ने आपकी कोई चीज वहां से, आपकी टेबल पर कोई चीज रखी थी और आप वहां से आपकी किसी ने उठा ली. यू डोंट नो किसने उठाई है, यू आर नॉट श्योर, सो यू कैन से एनीबडी टुक माई पेन. किसी ने मेरा पेन ले लिया. अब आपने जो वर्ड यूज किया एनीबडी, नाउ यू आर नॉट श्योर कि किसने लिया है, तो आप ही शी यूज तो नहीं कर सकते हैं ना. तो वन वर्ड यू आर यूजिंग एनीबडी. और या फॉर एग्जांपल कोई चोर है, उसने कोई चीज चुराई है और किसी ने उसको नहीं देखा है, तब अब आपको ये तो पता ही नहीं किसने देखा और किसने नहीं देखा है. सो आप क्या कहोगे, नोबडी सॉ हिम, किसी ने नहीं देखा. अब किसी ने में आपको नहीं पता है, आप किसी एक पर्सन के लिए तो यूज नहीं कर रहे, आप ऐसे पर्सन के लिए यूज करें जिन्हें आप नहीं जानते, आप नहीं श्योर है, एक है, दो है, तीन है, चार है, हाउ मेनी दे मे बी. तो इनडेफिनेट प्रोनाउंस हम उनके लिए यूज करने हैं व्हेन वी आर नॉट श्योर, व्हेन वी आर नॉट यूजिंग फॉर सम पर्टिकुलर पर्सन. हम किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए यूज नहीं करते हैं जब हमें श्योर नहीं होता कि सामने पर्सन, हम किसी कोई पर्टिकुलर पर्सन नहीं है हमारे सामने, कि हमें नहीं पता कि हमें सामने पर्सन कौन है. उनके लिए जो हम प्रोनाउन यूज करते हैं they are called indefinite pronouns. For example, much, somebody, nobody, one, someone took my pencil. किसी ने मेरी पेंसिल ले ली. अब आपको नहीं पता किसने लिए, अब आप ही ना ही यूज कर सकते ना शी यूज कर सकते, बिकॉज यू डोंट नो द पर्सन, आपको श्योर नहीं. देन व्हाट वर्ड विल यू यूज, समवन. सो दीज आर indefinite pronouns. These are many indefinite pronouns. Much is there, no one is there, someone is there. So बहुत सारे words हैं children. So these are called indefinite pronouns. One thing. Second thing, likewise, if after them I use noun, then the same thing is repeated. अगर इनके बाद में मैं noun यूज करती हूँ तो ये क्या हो जाएंगे हमारे adjective. What will they become? Adjective. जो अब तक आप सारे pronouns में करते आ रहे हो, same words होते हैं pronouns as well as adjective. एक major difference is there, that adjective is always followed by a noun.
adjective is always followed by a noun. Adjective is always followed by a noun, whereas pronoun के बाद में noun नहीं होता है, because pronoun you are using in place of noun. आप noun की जगह pronoun यूज करो. So they are not followed by a noun, whereas adjectives are always followed by noun. ये मेजर डिफरेंस है. इनमें भी आपको ये सब adjective मिलेंगे. इफ for example, some people saw the accident. Some people saw the accident. Now here some के बाद में क्या आ गया? People. Now people is noun, so it will become adjective. It will become adjective because it is followed by a noun. It is followed by a noun. So if we are not, someone saw the accident. अब इसके बीच में अगर हम ये people हटा देते हैं, so this will become pronoun. So this will become pronoun. Now we will do its exercise. अगर हम एक्सरसाइज करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा चिल्ड्रन. Now see page number 151. First is Dash was late to work because of traffic jam. Everybody was late to work because of traffic jam. Dash knows who stole the diamond necklace. Nobody knows who stole the diamond necklace. RC is would Dash like a cup of coffee? Would anyone like a cup of coffee? D is Dash say he is mad. Some say he is mad. कुछ लोग कहते हैं कि वो mad है. I need Dash to help me. I need someone to हेल्प मी. मुझे हेल्प के लिए कोई चाहिए. अब आप श्योर नहीं आपको कौन चाहिए, बट आपको कोई चाहिए. सो नेम तो यूज करोगे नहीं, तो नेम की जगह क्या आएगा? प्रोनाउन. सो समवन. डैश एट माई पिज्जा. Somebody ate my pizza. I don't know dash of these answer. I don't know any of these answers. H is it is very foggy. We cannot see anything. हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा. I is dash has happened since we met. Much has happened. बहुत कुछ हो गया जब से हम मिले थे.
Children, here you will start with capital letter because here sentence is starting with much. Listen, I heard something. मुझे कुछ सुनाई दिया. K is dash must do one's duty. One must do one's duty. हर एक को अपनी ड्यूटी जरूर करनी चाहिए. सो दिस इज द एक्सरसाइज. आई होप आपको सब समझ आ गया होगा. सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज नोटिस. Our next topic is notice. Now notice children, अगर आपने देखा होगा अपने स्कूल रिसेप्शन पे रेड कलर का बोर्ड है साइड में और उस पे लिखा हुआ है नोटिस बोर्ड. Now why this notice board is there? हमें स्कूल के बारे में स्कूल को कुछ भी इंफॉर्मेशन देनी होती है. So they write it on the notice board. वो किस पे लिख देते हैं? नोटिस बोर्ड पे. सो अब हम आपको इन दिस आई विल टेल यू नोटिस बोर्ड पे हमें कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं तो हम नोटिस बोर्ड पे लिखेंगे. मान लो स्कूल कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज कर रहा है, किसी पर्टिकुलर क्लास को कोई इन्फॉर्मेशन देनी है, उनके लिए कोई कैंप है ऑर्गेनाइज, कोई पिकनिक ऑर्गेनाइज हो रही है. फॉर डेट किसी का कोई लॉस्ट हो गया है स्कूल में तो उसको इन्फॉर्मेशन देनी पूरे स्कूल को. तो ही और शी विल नॉट गो टू अ सिंगल चाइल्ड. वो हर एक के बच्चे से इट्स नॉट पॉसिबल. तो व्हाट ही विल डू, he will write a notice on the notice board. किसी को कोई चीज मिल गई किसी बच्चे की, अब उसको नहीं पता है, what will he do, he or she, वो भी क्या करेंगे, नोटिस लिख के नोटिस बोर्ड पे लिख देंगे कि मुझे ऐसी ऐसी चीज मिली है, जिसकी है वो ले लो. सो दैट्स व्हाई नोटिस इज रिटन, सो दैट एक साथ पूरे स्कूल को इंफॉर्मेशन दे दी जाए. नाउ हाउ वी राइट नोटिस. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ड्रॉ इट्स आउटलाइन. हम सबसे पहले क्या करेंगे चिल्ड्रन, इसकी आउटलाइन बनाएंगे. इन योर कॉम्पैक्टा बुक आउटलाइन इज गिवन, राइट. आपकी कॉम्पैक्टा बुक में आउटलाइन दी हुई है ऑलरेडी. बट इफ यू विल राइट इन पेपर, अगर आप पेपर में दे रहे हो, एग्जाम में लिख रहे हो और यू राइटिंग इन नोटबुक, सो यू हैव टू मेक दिस आउटलाइन. उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आउटलाइन बनानी है. देन सबसे फर्स्ट में मिडल में व्हाट यू विल राइट इज स्कूल नेम, एंड इट्स प्लेस. लाइक आई हैव रिटन हियर राठ इंटरनेशनल स्कूल कुंड. यहां पे आप यही लिखेंगे सबसे पहले जो भी जिस भी स्कूल का नेम है और उसका प्लेस, जैसे मैंने अभी लिखा है कॉमा डाल के इट्स प्लेस. In next sentence, here you will write notice in block letters. मिडल में हम लिखेंगे नोटिस. नाउ here you will write date. जिस डेट को आप नोटिस लिख रहे हैं. अब डेट कैसे लिखी जाती है? डेट, नाउ फॉर एग्जाम्पल डेट हम ऐसे लिखते हैं 8 जून 2021. इसमें डेट ऐसे लिखी जाती है. ओके चिल्ड्रन. देन हेयर, उसके बाद में मिडल में यहाँ पे आपका टॉपिक, वाई यू आर राइटिंग द नोटिस, जो भी है. फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे की कोई पेंसिल बॉक्स लॉस्ट हो गई है. सो वट यू कैन राइट, एक आप सिंगल वर्ड में भी लिख सकते हैं लॉस्ट, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं लॉस्ट, लॉस्ट और लॉस्ट. इट्स योर ओन विश. आप 3 वर्ड्स में लिखो या एक सिंगल वर्ड में लिखो, लॉस्ट लॉस्ट लॉस्ट. नाउ अब बीच में आप कंटेंट लिखेंगे, व्हाई यू आर राइटिंग द नोटिस. अब आप स्टार्ट करेंगे, here it is informed that I have found a pencil box. फॉर एग्जाम्पल आपकी कोई पेंसिल बॉक्स लॉस्ट हो गई है,
तो आप लिखेंगे कि माई पेंसिल बॉक्स इज लॉस्ट। कहाँ लॉस्ट हुई है? प्लेग्राउंड में, फॉर एग्जाम्पल प्लेग्राउंड में लॉस्ट हो गई। कब लॉस्ट हुई है? रिसेस पीरियड में लॉस्ट हो गई। किस कलर की है, किस कंपनी की है? इट इज ऑफ क्लासमेट कंपनी, ब्लू कलर की है। उसके अंदर क्या क्या सामान है आप लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 पेंसिल्स है या 2 पेन है, ये पेन है, एक पेंसिल है, कंपास है, शार्पनर है, 1 इरेजर है, स्केल है, कुछ भी जो भी आपका उसमें मटेरियल है, जिस भी कलर की पेंसिल बॉक्स है, जिस कंपनी की पेंसिल बॉक्स है, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको इधर लिखनी है। उसके बाद लास्ट लाइन में आप लिखेंगे कि वो किसी को भी मिले तो वो किसको देंगे। अब किसी बच्चे को अगर मिलती है तो वो किसको देंगे आपको बताना है। इफ somebody gets it, प्लीज रिटर्न इट टू। अब फॉर एग्जाम्पल आप क्लास 5th के स्टूडेंट है, आप लिख सकते हैं प्लीज रिटर्न इट टू, प्लीज रिटर्न इट इन स्टोर रूम और एट रिसेप्शन और इन क्लास 5th A। आप कहीं भी उसका दे सकते हैं कि जिसको भी मिले वो वहां पर इन हेड गर्ल ऑफिस, हेड गर्ल्स रूम, या आप स्कूल के रिसेप्शन पर दे सकते हैं। आप कहीं भी उसका स्टोर रूम में उसको आप डिपॉजिट कर सकते हैं, किसी को भी मिले। और फिर उसके बाद में यहां पर आप लिखेंगे सिग्नेचर, साइन, यहां अपना नेम। उसके बाद आप यहां अपनी डेजिग्नेशन लिखेंगे। यू विल राइट योर डेजिग्नेशन। नाउ डेजिग्नेशन मीन्स फॉर एग्जाम्पल ये इंफॉर्मेशन, आप क्लास 6 के एक सिंपल स्टूडेंट हो, आप क्लास प्रीफेक्ट हो। फॉर एग्जाम्पल आपकी क्लास में किसी की लॉस्ट हुई और आप क्लास प्रीफेक्ट हो और आपने ही नोटिस लिख दिया, तो व्हाट यू विल राइट इज, आपने एक डेजिग्नेशन लिख दिया क्लास प्रीफेक्ट 5th A। या आप सिंपल क्लास स्टूडेंट हो तो आप लिख सकते हो स्टूडेंट 5th क्लास 5th A B C सेक्शन, जो भी आपका सेक्शन है, यू कैन राइट लाइक दिस। नाउ फॉर एग्जाम्पल एक और नोटिस मैं आपको क्लियर करवा देती हूँ। आपका कोई स्कूल जो है डेंटल चेकअप कैंप ऑर्गेनाइज कर रहा है क्लास 4, 3rd to 5th स्टूडेंट्स के लिए। डेंटल चेकअप कैंप आप लिख सकते हो, चेकअप कैंप। उसके बाद में ये इंफॉर्मेशन हेड गर्ल दे रही है और ये आप लोगों से 20-25 रुपीज और 20 रुपीज मंगवा रहे हैं उस डेंटल चेकअप के लिए, जो कल है या 2 दिन बाद है। जब भी आपको ये है तो एडवांस में हम नोटिस लिखते हैं तो बताया जाएगा कि ये डेंटल चेकअप ऑर्गेनाइज हो रहा है, इस दिन हो रहा है और इस क्लास से इस क्लास तक स्टूडेंट्स को हो रहा है। तो सबको ये बताया जाता है कि प्लीज ब्रिंग 25 रुपीज टुमारो। और उसके बाद आप साइन लिखेंगे, अपना नेम लिखेंगे और डेजिग्नेशन में आप लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हेड गर्ल है तो आप हेड गर्ल लिख सकते हैं। लाइक दिस यू हैव टू राइट द नोटिस। सो आज हमारे 2 टॉपिक्स कवर हो गए हैं चिल्ड्रन, नोटिस एंड आवर प्रोनाउन टॉपिक इज कंप्लीट। प्रोनाउन के बाद में जो प्रोनाउन से रिलेटेड पूरी समरी, मतलब जितने भी टाइप के प्रोनाउंस थे अब तक तो सेपरेट एक्सरसाइजेस थी, नाउ उनकी एक कंपाइल पूरी एक एक्सरसाइज है, सारे प्रोनाउंस उसमें कवर अप हो जाएंगे। सो आई एक्सपेक्ट ऑल ऑफ यू टू फिल इट योरसेल्फ। फर्स्ट आप अपने आप फिल कीजिए ताकि आपकी बहुत, चिल्ड्रन ग्रामर इज जस्ट लाइक मैथ्स, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपको अच्छे से आएगी। सो आप उसको कंप्लीट अपने आप ट्राई कीजिए। उसके बाद आई विल सेंड आंसर्स, देन मैच योर आंसर्स, कहाँ आपका राइट हो गया, कहाँ आपका रॉन्ग हो गया, एंड देन आई विल श्योरली टेक योर डाउट्स। Up till that children, do try it yourself. And then today we have covered our topic notice. Likewise lost का हुआ था found। आपको कोई पेंसिल बॉक्स मिली है, वो कहाँ मिली है, ऐसी आप इंफॉर्मेशन दे सकते हो कि I found a pencil box in the playground in the recess period, और वो इस कंपनी की है, इस कलर की है, उसके अंदर सारा ये मटेरियल है, जिसकी हो वो कहाँ से कलेक्ट कर ले। प्लीज कलेक्ट इट फ्रॉम द अंडरसाइंड। या तो आप ऐसे लिख सकते हो कि कोई मुझसे कलेक्ट कर ले। तो अब आप मान लो क्लास प्रीफेक्ट हो या स्टूडेंट हो, क्लास 5th A B C किसके भी हो,
तो वहां आप लिख सकते हो कि कलेक्टेड फ्रॉम द अंडरसाइंड, नीचे लिखे गए व्यक्ति से कलेक्ट कर लीजिए। वहां यू कैन सिग्नेचर, नेम एंड स्टूडेंट हो या क्लास प्रीफेक्ट हो या हेड गर्ल हो या प्रिंसिपल हो, टीचर हो, आप कुछ भी उसमें जो भी आपके डेजिग्नेशन है वो आप लिख सकते हो। लाइक दिस यू हैव टू राइट। Okay children, so that's for today. Bye everyone.